In this video, we are going to find average. Average is nothing but sum of observations divided by number of observations now. For example, if in a question it is asked that what is the average of किसका 1, 2, 3, 4 and 5. So what we are going to do is average we have to find out. So we have to sum of the observations. Observations are the numbers 1, 2, 3, 4 and 5. How many they are in number? 5 है. Number of observation कितनी है? एक 1 कहलाएगी, 2 2 होगी. ये 5 numbers हैं. So sum will be 15 divided by 5. So our answer is 3. क्या क्या हमने समझते हैं? अगर हमें एवरेज गिवन था तो नहीं, एवरेज हमने निकालना था. नंबर्स के ऑब्जर्वेशन हमें पता थे. नंबर्स कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 and 5. So we have divided by number, that is 5. Now we will try to solve one more question. The question says that a student was asked to find the arithmetic mean of the following 12 numbers. Numbers कौन कौन से हैं? 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 and x. He found the mean to be 12. The value of x will be, so arithmetic mean means average. Arithmetic mean बोले या फिर average बोले, both are the same. So arithmetic mean will be equal to sum of the observations divided by total number. So what are the numbers? These are the numbers whose arithmetic mean was to be found. Thirteen, 8, 19, 17, 21, 14 plus x. So these are the 12 numbers. ये कितने numbers हैं? 12 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divided by 12 होगा. And their arithmetic mean was given as, according to question, हमारे according क्या होगा? ये होगा total. According to question, arithmetic mean was given as 12. So what we have to do is just multiply these. So we just have to, arithmetic mean is given as 12. 137 is the sum of all the numbers plus x divided by 12. So we will multiply these two numbers. 12 into 12, that will be equal to 137 plus x. So 12 का स्क्वायर आएगा. 12 स्क्वायर इज वर्थ 144. 137 plus x. So x will be 144 minus 137. So what is the value of x? X is 7. So now we can say that the value of x was 7. How do we find out? सबसे पहले हमने क्या करा? अर्थमेटिक मीन के लिए सम ऑफ द नंबर्स. टोटल नंबर कितने थे? अर्थमेटिक मीन was given as 12. So I have put it there. 137 plus x. 137 is what? Sum of all the 11 numbers plus x, 12th number. That's how we are getting 12 into 12, 137 plus x. Solve करने के बाद we are getting x as 7.
नाउ अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस क्वेश्चन में किस तरह की बात कही गई है। हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, और कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट्स वाज 51। ओके, स्टूडेंट 1 से लेकर के स्टूडेंट 8 तक का वी हैव गिवन एज 51. Average is given as, so average is what? S1 plus S2 plus S up to S8 divided by number 8 equals to 51, because average is given as 51 in the question. Now, and by 9 other student was 68. 9 other students say, so we can say जी ले लेते हैं, गर्ल 1 प्लस अप टू G9. So what was the average of these according to us? इतना होना चाहिए. In the question it is given as 68. Now what we have to do, if we will multiply 51 by 8, what we will be getting? We will be getting S1 से लेकर के S8 तक के जितने स्टूडेंट थे उनके मार्क्स का सम हमें मिल जाएगा. तो यस, S1 प्लस S2 प्लस अप टू S8 तक का जितना हमारा सम होगा वो कितना होगा? 51 इंटू में 8, दैट इज 408. नाउ जितने भी गर्ल्स थे उनका G1 से लेकर के जो अदर स्टूडेंट थे उनके बारे में बात कर रहे हैं. मैंने G ले लिया इंडिकेट करने के लिए. G9 क्योंकि 9 है उसमें, so it will be 68 multiplied by 9. सिक्स 112. एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 68 मल्टीप्लाइड बाय 9. ओके ठीक है. नाउ वी आर गेटिंग दीज टू इक्वेशंस. नाउ व्हाट इज आवर the average marks of all the 17 students? 8 student ये थे, 9 student ये थे, total कितने हुए? 17 student was there. So we have been asked that what will be the average of all the 17 students. Okay, so S1 plus up to S8 plus 9 student G1 से लेकर के up to G9 divided by 17 equals to, यही हमसे पूछा है. For that we will need these two digit numbers. That's why I have written it over here. जो हमें पहले एवरेज गिवन था उससे हमने सम निकाल लिया, मल्टीप्लाई करा नंबर से एवरेज को. हमें क्या मिल गया? सम मिल गया. सम ऑफ द मार्क्स of 8 student is 408. Sum of the marks of 9 student is 612. Now divide it by 7. We will get our answer. If we will add these both numbers, we will get 1020 divided by 17. अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा 17 से डिवाइड कर दीजिए. आपको कितना मिलेगा आंसर? 60 मिल जाएगा. तो बेसिकली हमें से क्या देता है और कैसे पूछता है? हमसे 8 स्टूडेंट का एवरेज दे दिया, यानी इनका सम दे दिया बेटा. जो हमारा एवरेज गिवन होगा, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हमें क्या मिलेगा? सम मिल जाएगा. तो इसी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो अच्छा लगता है कि आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं. ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता. बस ये क्या हुआ, 8 स्टूडेंट अलग थे उनका एवरेज दे दिया, 9 स्टूडेंट अलग थे उनका एवरेज दे दिया, दोनों का टोटल एवरेज पूछ लेता है. तो हमें क्या करना है? टोटल सम चाहिए होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास जितने मार्क्स हैं उनका सम चाहिए होगा डिवाइडेड बाय नंबर. उसी तरह से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन. सो
what does it says? Question number 3 says average marks of 3 batches of 55, 60 and 45 students respectively is 50, 55 and 60. Then the average marks of 3 batches of 55, 60 and 45 यानी क्या हुआ, ये 55, 60 and 45 क्या है, स्टूडेंट्स हैं हमारे, एंड एवरेज गिवन है इज 50, 55 and 60. These are the average. So basically I just told you to find out the sum of the total 55 student, what we have to do is multiply the average by total number of student. So we will get S1 से लेके S55 तक का जो सम होगा वो मिल जाएगा हमें. Average is given as 50, so we will multiply 55, so we will get it. So what we have to do, basically we have to multiply these numbers and add all the numbers, divide by total number of students. Now we will try to do it in lengthy way so that we can understand. These are the students. मेरे पास एक बैच में 55 स्टूडेंट हैं, दूसरे बैच में कितने हैं, 60 हैं, तीसरे बैच में कितने हैं, 45 हैं. एवरेज मार्क्स जो वो स्कोर कर रहे हैं, 55 स्टूडेंट कर रहे हैं, वो 50 है. एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट इज 55. एवरेज मार्क्स ऑफ 45 स्टूडेंट इज 60. सो S1 से लेकर के S55, that all the student 55 student average is 55 student average is 50. So to get their sum, what we have to do, we will multiply these both numbers, then we will get that 2750. Now सेकेंड बैच का कितना एवरेज है, 55. टोटल नंबर में स्टूडेंट कितने हैं, 60 स्टूडेंट है. सो डिवाइड बाय 60. जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें दूसरे बैच जिसका टी नाम है कोई, उसका टोटल सम मिल जाएगा. उसके टोटल जो स्टूडेंट है उनका इंडिविजुअल जो स्कोर होता है उसका सबका सम मिल जाएगा हमें. So that is 3300. Now थर्ड जो बैच है इसको नाम देते हैं P1 एंड P 45 स्टूडेंट है. सो 45 इक्वल्स टू एवरेज कितना है, 60 है. वी मल्टीप्लाई दीज बोथ नंबर, वी विल गेट द सम ऑफ 45 स्टूडेंट ऑफ थर्ड. So that's how we are getting 2700. तो मैंने पूछा कि टोटल मेरा जो एवरेज होगा वो कितना होगा. टोटल एवरेज पूछा है, तो अब देखते हैं कितना होगा. टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं, S1 वाले कितने हैं, 55. T1 वाले, T बैच है मेरे पास दूसरा, उस बैच के कितने हैं, 60 हैं. एंड P वाला जो बैच है उसके टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास, 45 है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे यानी 55, 60 प्लस 45. Now what we have to do, just write these numbers because S1 से S55 तक का जो सम है that is 2750. T1 से लेके T60 तक का जो सम है that is 3300 and P1 से लेके P45 तक का जो सम है that is 2700 and divide it by 55 plus 60 plus 45 जो आएगा वो उससे डिवाइड करना है मुझे. So sum is 2750 plus 3300
एंड पी वाले स्टूडेंट्स का एवरेज के अकॉर्डिंग हमारा जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 2700. नाउ दैट विल बी 160. Now we just have to divide. After adding 2750, 3300 and 2700, you will get 8750 and divide it by 160. So basically 0 से 0 cancel हो जाएगा and rest you will divide and you will get 54.68 as your answer. So that's how we can solve it. This is this total solution. पहले हमें क्या कहा था, अलग अलग दिया हुआ था. मैंने माना कि S1 S2 S3 S55 स्टूडेंट से मेरा ये एक बैच था, बैच 1, बैच 2 ये था, बैच 3 ये था. अपनी तरफ से आप कुछ भी मान सकते हैं. इनमें मेरे पास कितने थे 55 स्टूडेंट, बैच 2 में 60, थर्ड वाले में 45. टोटल स्टूडेंट 160 हो गए. नीचे नंबर आता है टोटल, एवरेज नहीं आएगा तो एवरेज हमारा अलग अलग था, हमने लिख लिया. तो ऐसे हमने सॉल्व किया. नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन. सो वी हैव टू सी व्हाट डज इट सेज. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ आई विल टेक डिफरेंट टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. व्हाट डज इट सेज. The average of 9 numbers is 30. The average of first 5 numbers is 25, and that of the last 3 numbers is 35. What is the sixth number? Okay. Question क्या कहते हैं? First we have to write it. मेरे पास average है, the average of 9 numbers. यानी 9 numbers मेरे पास हैं x1 से लेकर के These are the 9 numbers. इनका मैं सम करूंगा, डिवाइड करूंगा 9 से, देन आई विल गेट द एवरेज. एंड एवरेज गिवन है कितना, क्वेश्चन में कितना कहा है 30 कहा है. नाउ फिर से देखते हैं. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, यानी इन फर्स्ट 5 नंबर्स का कितना है एवरेज, x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5. एवरेज कितना गिवन है, क्वेश्चन में कितना कहा है 25. ओके. सो यहाँ पे भी अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा 9 से तो मुझे क्या मिलेगा, इन x1 से लेके x9 तक का सम मिल जाएगा. ये समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए. 270 आ गया. अब देखते हैं बाकी का कितना सम आता है. x1 से लेके x5 तक का सम आएगा 25 इंटू में 5, 125 इक्वल्स टू x1 से लेकर के कहाँ तक का, x5 तक का जो हमारा सम आया वो आया 125. एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर, कितने नंबर हम ले रहे हैं, 5 नंबर है 9 नंबर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्या कहा है इसमें, एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स, लास्ट 3 नंबर्स का हमें एवरेज कितना दिया है, लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज इज गिवन एज 35. ओके. लास्ट 3 नंबर कौन से होंगे, x7 प्लस x8 एंड x9 डिवाइडेड बाय 3. हमारे अकॉर्डिंग इतना एवरेज होना चाहिए. क्वेश्चन में कहा है कितना 35 होगा, तो हम मान लेते हैं x7 x8 एंड x9 इक्वल्स टू 35 इंटू में 3, 105 आ गया. नाउ 125 105 ये टोटल सम आ गया हमारा. किस किस का आया है, x1 से लेके x5 तक का हमारा टोटल सम कितना आया है, हमने देखा 125. ओके. ये कितना आया 125. x1 से लेके x5 तक का 125, 3 लास्ट वाले से उनका 105. तो अगर मैं टोटल वाले में से इन दोनों का सम घटा दूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, S6 मिल जाएगा. वही करते हैं.
मेरे कहने का मतलब समझो क्या कह रहा हूँ मैं, x1 से लेकर के मेरे पास सारे नंबर हैं x9 तक। अब इन सब का जो टोटल सम है उसमें से मैं क्या घटा रहा हूँ, x1 से लेके x5 तक के नंबर, x1 से लेकर के x5 तक के सारे नंबर, और मुझे घटाने x3 x8 सॉरी x7 x8 और x9, यानी ये 7 भी गया, 8 भी गया, 9 भी गया। सो मुझे बेसिकली मिलेगा क्या, मेरे पास सिर्फ एक ही बचेगा यहाँ पे, वो होगा S6 जो मेरे पास बच जाएगा, बाकी सारे नंबर यहाँ पे होंगे ऑलरेडी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, x6 जो मुझे निकालना है। मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, टोटल नंबर आया 270 में से माइनस करना है 125 प्लस 105, 270 माइनस 230 वी विल गेट 40। तो हमें पता चल गया x6 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 40 थी, 40 थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं क्वेश्चन में, जितने नंबर होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज से, तो हमें क्या मिल जाता है, सम ऑफ दी नंबर्स, सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस। We will try one more question on the basis of this. Now, question number 2, type 2 का देखते हैं। What does it say? The average of 15 numbers is 7. If the average of first 8 numbers is 6.5 and the average of last 8 numbers B कितना होगा 9.5, then the middle number is, middle number पूछा है हमसे कहा उसने x1, x2, x3, x4, x5। अप टू कहाँ तक के हैं ये हमारे नंबर्स, ये हमारे नंबर्स आते हैं 15 नंबर हैं। सो x15 तक होगा हमारा, डिवाइड करेंगे आप 15 से। सो आपका जो बेसिकली नंबर आएगा वो क्या आएगा, अगर हम एवरेज निकालते हैं इन सब का तो एवरेज विल बी 7। इन सब का एवरेज कितना होगा, एवरेज विल बी 7। ओके, अब हमें क्या बोला है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स x1 से लेकर के x8 तक एवरेज विल बी 6.5 एंड लास्ट के जो 8 नंबर होंगे उनमें कहाँ से स्टार्ट होगा, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14 और x15। कितने हो रहे हैं, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय 8। क्वेश्चन में कितना दिया है, इसकी एवरेज कितना होगा 9.5। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मानता हूँ, x1 से लेकर के अप टू x8 तक का मुझे टोटल सम मिल जाएगा। $52 आ जाएगा। हमने क्या करा, 8 की मल्टीप्लाई कर दी 6.5 में, तो हमें क्या मिला, इन टोटल का x1 से x8 तक का सम मिल गया। x8 से लेके x15 तक का सम निकालने के लिए 8 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 9.5। तो हमें क्या मिल जाएगा, x8 से लेकर के x15 तक का सम। $76। तो अब मेन पॉइंट क्या है वो समझते हैं। अगर मैं इसे मानता हूँ इक्वेशन 1, इसे मानता हूँ इक्वेशन 2 और इनको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 बना देता हूँ, तो मेरा कितना नंबर आएगा, 105, 105। इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं ऐड करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, x8 2 टाइम मिलेगा। आई विल गेट x8 कितने टाइम्स मिल जाएगा, 2 टाइम्स मिलेगा, क्योंकि x1 से लेके x8 के बीच में भी एक बार आता है।
और x8 से लेके x15 के बीच में भी एक बार आता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि ये 2 बार आएगा, ऊपर कितनी बार, एक ही बार है। तो अगर मैं इन दोनों को सम करता हूँ मुझे x8 एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बाकी पूरा x1 से लेकर के मुझे कहाँ तक मिलेगा, x15 तक मिलेगा। अगर इन दोनों को मैं सम करता हूँ तो वो आएगा कितना, 52 प्लस 76, if I am not doing any mistake, then मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा आंसर। 128, इन दोनों के ऐड करने पे 128 आया। x1 से लेके x15 तक का जो मेरा नंबर था वो मुझे पता है कितना होगा, x1 से लेके x15 तक 105। तो आपको बेसिकली करना क्या है x8 निकालने के लिए, 128 में से 105 माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ कर लेते हैं, 128 में से वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 105, हमें आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी 23। So that's how we can solve. ये basic questions हैं. Now we can solve it. We will see few more questions. Seven consecutive numbers is 20. The largest of these numbers is, so average of 7 consecutive numbers equals to, कितना given है, 20 है। Now 7 consecutive numbers, when we have to assume, we will assume x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x minus 1, x minus 2, x minus 3. So these are the 7 numbers we will assume as the 7 consecutive numbers. Now what we have to do is find their average. So we will add all the 7 numbers and divide it by 7, because numbers कितने हैं, ये 7 numbers हैं, 7 consecutive numbers हैं, average is 20. Okay, average is given 20. So now जब हम इन्हें ऐड करेंगे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे नंबर्स, इसीलिए हम ऐसा लेते हैं जैसे हमें मिडिल का नंबर डायरेक्टली मिल जाएगा। 7x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करा, x बराबर कितना आ रहा है, 20। ओके, हमसे पूछा था लार्जेस्ट नंबर, 20 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 23। पूछा होता मिनिमम नंबर सबसे छोटा वाला जो है इन 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में से, 20 माइनस 3 हो जाता, that will be 17. So 17 to 23 are the 7 consecutive numbers whose average is 20. Now we will look toward the next question. Next question क्या है? Now next question is the average of first 9 prime numbers is, हमसे पूछा है the average of first 9 prime numbers. प्राइम नंबर्स 9 कौन से होते हैं, फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स पहले लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। कितने हैं, फर्स्ट 9 नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय 9, हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि एवरेज कितना था। So what will be the sum of all these numbers? If I will add all these numbers, I will get 100 divided by 9. So answer will be 11 whole 1 by 9.
हमने क्या करा, फिर से रिवीजन देखते हैं। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स का हमसे पूछा था एवरेज कितना होगा, तो हमने पहले लिखे नंबर्स कौन कौन से, व्हाट आर दीज नंबर्स, नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। तो हमने क्या करा, इनका सम करा एंड डिवाइडेड बाय 9, वी गेट आवर एवरेज एज 11 होल 1/9। Now we will try to solve different question. Now the third question says the average of 5 consecutive natural numbers is m if the next 3 natural numbers are also included. How much more than m will the average of these 8 numbers be? कहने का मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। एवरेज हमें गिवन था, एवरेज 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। मैंने अभी बोला अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एज्यूम करने हैं तो हम क्या एज्यूम करेंगे, x +1 +2 x -1 -2 और x को ले लेंगे। दीज आर दी 5 नंबर्स जिनका एवरेज हमें कितना गिवन है, m गिवन है। सो एवरेज निकालने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डिवाइड इट बाय 5 equals to m. Average is m. Now when we add these numbers we will get 5x divided by 5. So that's how we are getting x equals to m. It means that x is equal to m. The middle number is equal to average. Now what we have done is we have also added 3 natural numbers of 3 और नंबर्स हमें ऐड करने हैं। Now what will be the 3 more numbers apart from these 5? These 5 are x -2 x -1 x x +1 x +2. We have to add 3 more numbers. Now x +3 x +4 and x +5. Now we have to find out the average of all the 8 numbers and compare it by previous. Now when we get these 2 say 1 1 2, they will be cancelled, but 5 + 4 9 + 3 12, 8x प्लस में 12 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू कितना आएगा एज कंपेयर टू m. वी हैव टू फाइंड आउट दैट। अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे आगे का सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है 8x प्लस में 12 डिवाइडेड बाय 8। सो 8 को मैं अलग अलग लिख दूंगा, बात एक ही होगी। नाउ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 12/8। हमसे यही पूछा था कि प्रीवियस जो एवरेज था उससे कितना ज़्यादा है, x इक्वल्स टू m आया था, हमने देखा था m जो था वो पहले वाले इन 5 नंबरों का एवरेज था। तो इनसे कितना ज़्यादा है, जब हम 3 नंबर्स और ऐड कर देते हैं 12/8। 12/8 मीन्स 1.5 ज़्यादा है पहले वाले एवरेज से। तो हमने देखा कि पहले 5 नंबर का एवरेज हमें गिवन था m, हमने वहां से देखा हमें मिला x इक्वल्स टू m। सो वी हैव फाइंड आउट कि प्रीवियस जो एवरेज था उससे अब जब हमने 3 नंबर्स ये ऐड और कर दिए तो हमें जो एवरेज मिलेगा वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 12/8। जब 12/8 को हमने सॉल्व करा हमें कितना मिला, 1.5। तो एवरेज विल बी इंक्रीज बाय 1.5। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं पहले। क्वेश्चन सेज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज, ए एंड बी की एवरेज इनकम यानी कि एवरेज हमारे अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए। अगर ए की सैलरी ए है, बी की सैलरी बी है, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे अकॉर्डिंग एवरेज इतना होना चाहिए।
एवरेज सैलरी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, उससे कंपेयर करेंगे हम 14,000. सो वी विल गेट A plus B equals to 28,000. Now we have also given that the average of salary of B and C is 15,600. So we will get the sum of salary of B and C will be कितना होगा, 31,200, 31,200 रुपये. अब बाकी के जो दो कंडीशन गिवन है, ए एंड सी की जो सैलरी है उसका एवरेज हमारे अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए. क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितने गिवन है, क्वेश्चन में से 14,400. सो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट ए प्लस सी इक्वल्स टू 28,800. हमें यहाँ से 3 इक्वेशन मिल गई. अब इन 3 इक्वेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जब हमें 3 इक्वेशन मिल गई, इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं. अब 3 इक्वेशन को वी विल ऐड ऑल दीज 3. इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ए मिलेगा, 2 टाइम्स बी होगा, 2 टाइम्स सी होगा, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c. राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, हमें कितना मिलेगा, 88,000. नाउ हमें क्या पता है, ट्वाइस है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं. सो वी विल गेट a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 88,000 था. अब हम क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c हमें पता चल जाएगी कितनी होगी, 44,000. मैंने क्या करा, 2 था, 2 से डिवाइड कर दिया, 88,000 को मुझे मिल गया 44,000. अब व्हाट वी नो दैट a प्लस b की सैलरी कितनी है, 28,000. तो हमें c की सैलरी मिल जाएगी 44,000 में से 28,000 रुपये घटा दो, हमें सी की सैलरी मिल जाएगी. सी की सैलरी कितनी आ रही है, 16,000. हमें ए प्लस बी की पता थी. अगर हमसे पूछता कि ए की सैलरी कितनी हो, मैं बी प्लस सी की वैल्यू रख देता यहाँ पे. तो ए की अगर पूछेगा, बी प्लस सी की मुझे पता है कितनी है, 31200 इक्वल्स टू 44,000. नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर इफ क्वेश्चन में पूछा हो तो. हमने क्या करा, हमें एवरेज गिवन था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर साइड में, तो हमें इक्वेशन मिल गई ए प्लस बी की सैलरी, बी प्लस सी की और सी प्लस ए की. हमने क्या करा, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, हमें कितनी मिली, 88,000 तीनों की इकट्ठी सैलरी. तो अगर मुझे ए प्लस बी की पता है तो मैं सी की भी निकाल सकता हूँ. तो ए प्लस बी की वैल्यू मैंने रख दी इस इक्वेशन से. फर्स्ट से 28,000 रुपये सी की सैलरी, वी विल गेट एज 16,000. नाउ in the next question it says the average monthly income of x and y is, the monthly income of x and y, the average monthly income x and y की हमारे अकॉर्डिंग x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 होनी चाहिए. क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितने गिवन है, 50 यानी 5,050 रुपीज. द एवरेज मंथली इनकम ऑफ y एंड z. तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमें पता चल जाएगी कितनी आएगी, 10,100 रुपीज x प्लस वाई. नाउ y प्लस z की मंथली एवरेज इनकम क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 6250. हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2. तो हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, तो हमें मिल जाएगा y प्लस जेड इक्वल्स टू कितना आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12,500. अब हमें आगे बोला था क्वेश्चन में
एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड जेड इज 5200. सो हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी? एक्स प्लस जेड की इकट्ठी सैलरी कितनी मिल जाएगी? दैट विल बी 10,400 रुपीज. नाउ जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, तो हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड में ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड में करेंगे. एक्स हमारे पास कितनी बार है? 2 बार है. वाई कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है. जेड कितनी बार है? 2 टाइम्स है. तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू, इन तीनों का सम कितना आएगा? 33,000 रुपये. अभी हमने करा था इससे पहले क्वेश्चन सेम वैसे ही क्वेश्चन है. नाउ वी हैव गॉट 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 33,000. We will get x plus y plus z as 16,500. Now we have to find out the value of x, so we can say x we have to find out, then y plus z की value is given in the equation second. We are using that one, 12,500, 16,500. So now, what will be the salary of x? It will be 4,000. So, the salary of x कितनी थी? Was 4,000. That's quite easy to solve. Now we will try to solve one more question. Now, next question says, the expenditure of a man for the first 5 months is 1,200. First 5 months in Jan, Feb, April, May. These are the 5 months. इनकी average expenditure कितनी थी? 1,200. So we can find out कि sum कितना था? Now for the next 7 months, जो अगले 7 months थे उनके लिए कितना था एक्सपेंडिचर, वो देखते हैं. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. कितने हुए ये? टोटल 7 मंथ हुए. एक्सपेंडिचर कितना था? 1,300 रुपये था. So now we will multiply 1,300 by 7. So हमें कितना मिल जाएगा? टोटल उसने जो पूरे साल में खर्चा करा वो मिल जाएगा. ये दोनों कितना है? देखो, जनवरी से लेकर के 5 महीने का खर्चा कितना? 6,000 रुपये खर्च कर दिए. जून से लेकर के दिसंबर तक 9,100. टोटल एक्सपेंडिचर इन दी ईयर, पूरे साल में उसने कितना खर्चा करा वो निकालते हैं पहले. 6,000 रुपये प्लस 9,100. तो हमें पता चल जाएगा टोटल उसने खर्चा कितना करा है. 15,100 रुपये. अब हमें क्या करना है, इसमें हमें उसकी सेविंग ऐड करनी पड़ेगी. तो हमें क्या पता है? टोटल इनकम पता चल जाएगी. तो टोटल इनकम कितनी थी उसकी वो देखते हैं. टोटल इनकम 15,100 रुपये उसने खर्चे में निकाल दिए. फिर भी उसने कितने बचाए थे? 2,900.
रुपीज़ उसने सेविंग करी थी। अब हमें क्या पता चल जाएगा यहाँ से, हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा टोटल उसकी इनकम कितनी थी। टोटल इनकम वॉज 18,000, यानी 18,000 रुपये पूरे साल में उसकी इनकम थी। जनवरी से लेके फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने में उसने खर्चे करे। एवरेज खर्चा जो था 1,200 रुपये। जून से लेके दिसंबर तक 7 महीनों का एवरेज खर्चा कितना था, 1,300 रुपये। फिर भी उसने कितने बचा लिए थे, 2,900। तो हमने टोटल इनकम देखी उसकी कितनी आई, 1,800 रुपये। अब अगर ये 1,800 रुपये तो उसकी टोटल इनकम है, सॉरी 18,000 रुपये अगर उसकी टोटल इनकम है, इसे मैं 12 से डिवाइड कर दूँगा, मुझे एवरेज इनकम पता चल जाएगी, एवरेज मंथली इनकम पता चल जाएगी। तो वही करना है। चलिए, टोटल इनकम कितनी थी, 18,000 रुपये। अगर 18,000 रुपये डिवाइड करेंगे 12 से तो वी विल गेट 1,500 एवरेज मंथली इनकम। क्योंकि पूरे साल में 18,000 रुपये कमाए तो एक एवरेज निकालना है कि एक महीने में कितने कमा रहा होगा, 1,500 रुपये उसकी एवरेज जो इनकम थी वो है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 5 है ये। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 60, फर्स्ट वन is 1/4 of the sum of the others. The first number is, okay, quite easy question है। The average of 3 numbers, I am assuming x plus y plus z, these are the 3 numbers whose average is 60. So we will get the sum of x plus y plus z, तीनों जो नंबर है उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, सॉरी 180। And in the condition it is said that first one is 1/4 of rest of the 2. So 4x equals to y plus z. अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज रख देते हैं। y plus z की जगह मैं रखूंगा 4x. So we will get x plus 4x equals to 180, 5x equals to 180. Now x कितना आ जाएगा मेरे पास, 180 डिवाइडेड बाय 5। 180 को जब 5 से डिवाइड करते हैं हमें क्या मिलेगा, 36। तो हमें एक वैल्यू मिल गई जो पूछी थी, x विल बी 36, वही पूछा था। हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे डाटा भी हमें गिवन नहीं है। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चन।